ठीक, बुक दीजिए। ओके, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून सर। कल क्या क्या डिस्कस किया था? सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ओके, और वेलोसिटी हम लोग नहीं स्टार्ट किए थे ना? किए थे स्टार्ट? नो सर। नो सर। और स्पीड No, we had sir. not discussed. We had discussed. नो सर। We had discussed about distance and displacement, where we proved that distance is always greater than equal to displacement. Distance is always greater than equal to 0. Displacement can be negative because by definition displacement means final position minus initial position. Then we also discussed that displacement is dependent on path or independent of path. Independent of path. Displacement is independent of path because displacement just means final minus initial, final position minus initial position. Fine. Now we will be understanding one step further. Okay, so ये chapter 8 है motion. We have discussed till 8.1 describing motion, motion along a straight line. We have discussed distance and displacement. Okay, now 8.1.2 uniform motion and non-uniform motion, and then we will be discussing speed with direction. So today we will be discussing about speed and speed with direction. क्या आप लोगों के पास है एनसीईआरटी बुक है? Yes, सबने में? सर। So I feel now we can right. So we'll be discussing about, we will discuss distance, displacement. Now we'll be discussing about velocity and speed. So displacement is initial position minus final position. Okay, this is an object A. This is an object which goes from A to B, and the position of the object is changing with respect to time. So therefore we conclude that the object is in motion. Okay, the object is moving. So how we tell that the object is moving? The object is moving, we tell based upon
whether the location of the object is changing or not. No. The position of the object is changing or not. The coordinates of the object is changing or not. That tells us about the displacement of the motion of, and we can also calculate the distance of the object which is traveling. Now, one more term which you will find commonly used in physics. Okay. So, like when we are talking about the change of position of an object. Okay, so this is x-axis and this is y-axis. और A का पोजीशन रहेगा x1, y1, तो B का पोजीशन है x2, y2. So when we are talking about the position of an object, that is with respect to an axis, and especially we had also talked about origin, okay, which is one of the which is the reference point considered for the object. मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने के लिए एक डायग्राम में ड्रॉ किया। हालांकि क्लास 9th में उसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। what we are going to talk about is, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, whether it is moving or not, हमको कैसे पता चलेगा? बोलिए। Sir, if its position changes, then by that, if it is not, then that object is moving, correct? yeah. Okay. So all of you agree that if the position of an object is changing, then we conclude that the object is moving. Yes or no? All of you agree? Yes, sir. Okay. Now my question is, like you may be sitting on a chair or on bed. Is the chair moving or not? No. Is the chair in movement or not? Is chair's coordinate changing or not? Tell. Sir, according to me, it is not moving, but one who is sitting in the space and seeing me, that according to him or her, we are moving and the chair is moving. Yes. Okay. So here we are just touching this concept and then we will go ahead. So basically when we are talking that the coordinates of a body is changing, the coordinate with respect to what? That is also important. With respect to stationary object. So with respect to, so that term is known as frame of reference. Okay. Yes, sir. So for a person who is there on the earth, for him the object
of the chair is not moving, but for a person who is there in the space or is there on the moon, for him the chair is moving. So it depends upon the frame where you are located. What is your reference point? That gives us an understanding whether the object is moving or not moving. ठीक है, इसमें Yes, सोचिए, you think about this for half an hour. Okay, is it clear? So Yes. an object is moving. Okay, object is moving. So when we tell object is moving, this is here the movement is with respect to one frame. Like for an example, we are sitting in a car, and in the car there is water bottle. Okay, we have our water bottle. So whether the water bottle is moving or not, is it moving or not moving? So it is not moving with respect to me because I am sitting in the car. But for an outsider, there is It some is movement. moving. Okay, so it depends upon the frame of reference. Okay, so this we are just kind of touching this concept. We are not going into detail. Okay, but yes, because ये है आपके book में इसका जिक्र है, so that's why we are kind of we just mentioned it. Okay. Now we'll be talking about uh, a term which tells us about the rate of change of displacement or distance. Okay, so that is velocity, or you can tell speed. Okay, so this is for displacement and this is for distance. ये already पहले चंदन सर ने cover किया है, ठीक है? मैं just इसको I'll just touch it and then I will move forward and I will be more discussing about graphs. So speed is about the rate of change of distance. Okay. So an object is there which is traveling time and velocity. So 0 to 2 seconds, its velocity is 2 meter per second. 2 to 4 seconds, its velocity is 8 meter per second. Okay. Now, what is the
distance covered. By the object. So for simple 2 seconds it's 4 meters and 8 meter per second say 4 seconds. So this is 8 meter per second say 2 to 4 to 8 into 16 meters. It becomes 20 meter. What is the time duration total? Total time duration is how much? 4 seconds. 4 seconds. 4 seconds. So 4 this, seconds. yes. Yeah. So this is the average speed. Okay. Yes, sir. Fine. And at time t equals 1 second, what is the speed of the object? Time t equals 1 second, what is the speed of the object? What is the velocity of the object? 2 meter per second. 2 meter per second. At time t equals 3 seconds, what is the velocity of the object? At time t 2 equals 3 meter per second. 8 meter per second. At time t equals 3 seconds. 8 meter per second. Yeah, Yes. 8. At time 3.5 seconds, what is the speed of the object? 8 meter per second. At time 3.7 seconds, what is the speed of the object? 8 meter per second. At time equals 1.87943 second, what is the speed of the object? 2 meter per second. At time 1.99999 seconds, what is the speed of the object? 2 meter per second. 2 meter per At second. that time t equals 2.00001 seconds, what is the speed of the object? 8 meter per second. 8 meters per second. Okay. So from here we move on to, okay, so when we have to like using this, we can draw the Distance, time, graph. Velocity, time. simple. So we are now plotting velocity time graph. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि लोग ग्राफ वगैरह सुन के ना थोड़ा they feel it's something new and all. Nothing new. Simple है. What is graph? है ना? Mathematically, what is graph? Graph is a collection of points. Okay. It's a collection of points. That is graph. And here, which are the points? So we have two information, time and velocity. So both of these we will be seeing it in the graph. So velocity time graph, when we are talking about, it is collection of instantaneous velocity. With respect to time. ओके. तो अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? वही जो मैंने पूछा कि 1 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है? तो 2. 1.5 पे कितना है? 2. 1.999 पे कितना है? तो 2. 2.5 पे कितना है? 8. 2.001 पे कितना है? 8. 3 पे कितना है? 8. 3.99 पे कितना है? 8. So now what we do is, it's 2 seconds, it's 4 seconds. So now what we do is, for every point, है ना? So 0.5 second, 1 second, 1.5 second, 1.9999 second. For all things, what we do is we plot the points. So 0.5 second पे कितना है इसका speed? 2. 2. 1 पे कितना है? 2. 1.5 पे कितना है? 2. 1.9 पे कितना है? 2. 2 पे कितना है? 2. 8. So this is how this line comes. This is a collection of these all points. कि
हर एक टाइम में 0.05, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 हर एक टाइम पे ना. सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ. हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है उसको हमने मैप किया, वो पॉइंट को हमने प्लॉट किया, एंड देन दैट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन. This is still 2 seconds, and then from 2 to 4 it's 8 meter per second. Then again we plot, है ना. 2.1 seconds पे कितना है, 2.5 पे कितना है, 3 पे कितना है, 3.5 seconds पे कितना है वेलोसिटी. सब पे 8, 8, 8, 8. Yeah. So that's how we plot velocity time graph. Clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So this is, so this is how we plot the velocity time graph. अच्छा, आप लोगों ने ये पूरा जो भी एक्टिविटीज वगैरह ये सब सॉल्व किया है इस चैप्टर का? सारा एक्टिविटीज इज इट डिस्कस्ड और नॉट? No, sir. हाँ, इट इज नॉट डिस्कस्ड. No. ओके, तो फिर आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना यू टेक आउट द बुक. ओके, वी विल बी गोइंग थ्रू द एक्टिविटीज. ओके, तो आ जाओ. सबसे शुरू में we can, right from the beginning we start 8.1 activity. Okay. So आप लोगों ने निकाला, बुक निकाला? So we will be discussing about this. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. activity Sir, I have 8.1, no discuss whether the walls of your classrooms are at rest or in motion. ठीक है, तो I will tell you किसको आंसर करना है. Okay, I'll just see, there are 3 participants I feel. Anjali is there, then Sanskar is there, and then Ruchi is there. Correct? All 3 of you are there? Yes, sir. Sir, there are 5 participants. Okay, there are 5 participants. Yeah. और कौन है? You can see. Just one minute. ठीक है, meanwhile one can give the answer. Okay, संस्कार आप आंसर करो. Sir, 8.1 activity. हाँ, yes, 8.1. Sir, it is in motion. अच्छा, ये there is one participant मुस्कान, है ना? Can you respond, मुस्कान? Can you respond? Are you present there? कहाँ से आप? ठीक है, fine. So at least we have 3 known participants for me. Okay. So हाँ, आपने क्या बोला? Discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. What is the answer? संस्कार. Sir, motion. Motion में है? Sure? Yes, sir. Sir, because ये जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को लगता है रेस्ट पे है, पर जब स्पेस से अगर देखा जाएगा तो वो मोशन में है. Okay. वो घूमता है. तो रेस्ट पे है या मोशन पे है, किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? सर मतलब? हाँ, आपने बोला कि अगर मैं देख रहा हूँ तो वो रेस्ट पे है, करेक्ट? स्पेस से देख रहे हैं तो वो Yes, sir. मोशन में है. तो इसका मतलब क्या है
कि आप Yes. कहाँ से देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है वेदर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं. करेक्ट? Yes, sir. Okay, so the answer will be Yes, sir. that whether the walls of my classroom are at rest or in motion, it depends upon कहाँ से हम देख रहे हैं, कौन सा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो जैसा कि Sir, हम it लोगों is ने in then डिस्कस rest. किया. हाँ, so it is, हाँ, Sir, so then it will be rest. no, I will tell you what is exactly answer. Okay. So one thing we have to understand that when we are talking about physics, okay, this world is a, in physics we discuss, one primary thing is about the motion of the objects. Okay, this is the chapter's name. Now, motion is the word motion. Motion is a relative. Okay, it's a relative word. It's not an absolute word. Okay, अभी इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी अभी हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं कि walls are in motion or not. So walls are in motion with respect to someone who is there on the sun. Walls are not in motion with respect to me in the room. तो मेरे नजरिए से तो जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को उस पे डिपेंड करता है ना, किस फ्रेम से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, उसके रिलेटिव में मोशन हो रहा है. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So what will be the answer? So discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. What do you feel? What is the answer? Rest, sir. It depends upon whether there is. It Fixed depends upon the frame of reference. Okay. Yes. Okay. Yes, sir. So generally, when we are talking about motion, we talk about relative motion. मतलब कि मेरे respect में जा रहा है क्यों? जैसे कि आप है ना अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग कहीं जा रहे हैं, अपनी नानी के घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं. Okay. So now when you are going in a train, सब लोग साथ में है, तो आपका जो भाई है, आपके जो फादर है ना, वो मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आपके रेस्पेक्ट में? क्या लग रहा है, कर रहे हैं? सर समझ नहीं आया. ओके, समझ लिया. एक ट्रेन में आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, ठीक है? Yeah. Yes, आप sir. है ना, तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो कुछ देर के बाद आपका फ्रेंड जो है थोड़ा दूर चला जाता है और आप थोड़ा इधर ही रहते हैं, ऐसा होता है? आप दोनों साथ में ही चल रहे हैं ना? Yes, आप sir. हैं, आपका फ्रेंड बैठा है, दोनों साथ में जा रहे हैं. तो आपके लिए ये आदमी तो स्टेशनरी है, जैसे कि बात कर रहे हैं आप, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से Yes, बात कर sir. रहे हैं. तो ऐसा थोड़ी है कि है ना, आप बोलते हैं कि ठीक है रुको मैं साइकिल लेके आता हूँ, फिर साइकिल पे बैठ के मैं बात करूँ. नहीं, आपके रेस्पेक्ट में ये आदमी जो है स्टेशनरी है, आप दोनों बैठे हुए हैं एक सीट पे और बात कर रहे हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके रेस्पेक्ट में उसका मोशन नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने चारों तरफ देखिए, रूम में, आपके रूम में बहुत सारी चीज जो है स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है. Yes, sir. तो हमारे रेस्पेक्ट में, ठीक है, मेरे नजरिए में. लेकिन कोई मेरा एक फ्रेंड है वो मून पे है, ठीक है, और या तो सन पे चला गया, सपोज कोई मेरा फ्रेंड है सन पे चला गया और वो देख रहा है कि अर्थ जो है सन का मूव कर रहे हैं, तो अर्थ पे ही हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग का मूवमेंट हो ही रहा है ना. Yes, sir. जब हम लोग बोलते हैं कि मैं एक बाइक पे जा रहा हूँ,
और उस बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है? बोलिए। Sir, it means that it covers 40 kilometers in 1 hour. With respect to what? Yeah. With With respect respect to to the ground. another people. हाँ, with respect to the ground. Oh, Getting? yeah. है ना? Yes. With respect to the ground. है ना? अभी है ना, sun is here, okay, earth is here. Suppose you know earth has covered, okay, अर्थ जो है यहाँ से यहाँ 1 लाख किलोमीटर आ गया, ओके, 1 घंटा में, सपोज Yes, sir. सपोज। तो यहाँ पे जो बैठा है वो तो यही बोलेगा ना, अरे आप तो 1 लाख किलोमीटर चले, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 है। You're getting Yes. what I'm telling? ठीक है? Yeah. मेरे ग्राउंड से रेस्पेक्ट में जो है, जो बाइक चल रहा है वो 40 किलोमीटर, लेकिन कोई सन पे बैठा है वो तो देख रहा है कि अरे आप तो अर्थ के साथ ही मूव कर रहे हैं ना। Yes, sir. मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से दूसरा एग्जांपल देकर के बताऊं, बोलो। Understood, sir. ठीक है, तो मोशन जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेटिव होता है। जैसे एक एग्जांपल, एक आदमी है, ठीक है, Yes, sir. का जो है हाइट कम है, नाटा है, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? बोलिए, कितना होना चाहिए? हाँ, देखिए 1 meters. कितना, ठीक है, 2 फीट 3 फीट, है ना। Yeah. जैसे हम बोल रहे हैं कि एक आदमी जो है नाटा है, ठीक है, तो उसका हाइट कितना है? 2 फीट। हमारे लिए ठीक है, हमारे रेस्पेक्ट में वो नाटा है, लेकिन एक चींटी के लिए तो वो पूरा पहाड़ ही है ना। Yes, sir. सो व्हेन वी आर टेलिंग कि यू नो ये आदमी छोटा है, उसका कद छोटा है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में छोटा है, लेकिन एक छोटे से है ना चींटी के लिए और एक छोटे से बैक्टीरिया के लिए बहुत बड़ा है, वो यूनिवर्स है, ठीक है नहीं? So Yes, when we are talking about the length and motion and all, okay, with so वो especially motion, when we are talking here about motion, okay, it is with respect to one frame of reference. आपके नजरिए से वो डिसाइड होता है कि वो मोशन है कि नहीं। Is it clear? Yes, sir. कोई स्टूडेंट तेज है, कैसे पता चलता है? कौन कैसे आप बोलते हैं एक स्टूडेंट तेज, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट? कैसे आप बोलते हैं? तो वो एग्जाम हुआ, उसमें मार्क्स आया है कि नहीं? yes, sir. लेकिन अभी एक रोड साइड पे एक बेगर है, ठीक है, उसको कुछ आता ही नहीं, उसके लिए तो सारे स्टूडेंट्स ही तेज है। जिसको आई एम ए बॉय, माय नेम इज अभिनव, ये भी कोई बोल दिया, उसके लिए वो इंटेलिजेंट है कि नहीं? लेकिन बहुत बार टीचर जो है हम लोगों को डांटते होंगे स्कूल में, अरे बुद्धू समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को तो आता है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है ना, क्योंकि आप जिस कॉलेज जिस क्लास में बैठे हैं, उस क्लास में जितना समझ में आना चाहिए उतना आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब कि इंटेलिजेंट आप नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नर्सरी के बच्चे से कंपेयर करो तो इंटेलिजेंट है। सो whenever we are talking, the words which we are using, it is used with respect to, it is a relative word. You are getting? Yes, sir. कोई आदमी रिच है, ठीक है, बहुत रिच है, लेकिन अंबानी से अगर कंपेयर करो तो सबको ही पुअर ही है। बट इफ यू कंपेयर with the roadside beggar, many are quite rich. So it is a relative term. Similarly, motion also is relative. जैसे मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड कहाँ मूव कर रहा है, तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, इधर ही लिख रहा हूँ। अगर इस बोर्ड का स्पीड रहता तो मुझे दौड़ दौड़ के लिखना पड़ता है ना, तो Yes, दौड़ दौड़ के sir. लिख रहा हूँ क्या? नहीं। तो दिस बोर्ड इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू मी। लेकिन कोई सन से देख रहा है तो देखिए कितना भाग रहा है, कितना जोर से भाग रहा है बोर्ड,
और वो ये भी देखेगा कि मैं भी साथ साथ बोर्ड के भागा, क्योंकि अर्थ जो हमारा ग्राउंड है वही भाग। Okay, so motion is relative. So the answer of this is, what is the answer? So discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. So what is the answer? बोलिए। Sir, संस्कार आप बोलिए। सर रेस्ट पे है। अरे यार, इतना इतना पड़ा है। रेस्ट पे किसके रेस्पेक्ट में है? आपके रेस्पेक्ट में है ना सर विथ यस सर। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा जा रहा पर है। स्पेस से अगर हाँ, स्पेस से वो रेस्पेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं नो है कि सर। रेस्ट पे है कि मोशन पे है। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि the wall is of your classroom is at rest with respect to संस्कार और नॉट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये केवल बोला जा रहा है कि रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो रेस्ट पे है with respect to me, motion में है with someone in space. So exactly, you know how to tell? So it depends on the frame of reference. That is the answer. reference. Okay, so what is the answer? हाँ बोलिए, संस्कार आप बोलिए। डिपेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए एक्सप्लेन फ्रेम कीजिए। ऑफ रेफरेंस। बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आपने जो बोला एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे अगर हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे है वॉल को, पर अगर हम लोग स्पेस से देखेंगे तो वो मोशन पे है। मोशन पे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्टली हाँ, तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एकदम 100% रेस्ट पे नहीं, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.2। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, ट्रेन में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा तो ट्रेन चल रहा है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है अरे मेरा तो ट्रेन चल ही नहीं रहा। Yes, sir. कब एक्सपीरियंस किया? Sir, when the train is at rest at the platform and all the people are moving. What has happened? हाँ बोलिए। Sir, I have आपका म्यूट हो गया है। नहीं, एक मिनट, आपका म्यूट हो गया था, हम लोगों को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। Yes, sir. Sir, I have experienced that the train in which I'm sitting appears to move while it is at rest. At that time, when it is moving and we are sitting inside the train and the environment out of the train is moving. It seems to be like ट्रेन that. इज एट रेस्ट, ट्रेन आपको रेस्ट पे है, लेकिन कैसे आपको फील होता है कि वो मूव कर रहा है? Yes, sir. Sir, when we are on the platform, in the train, then if we are in the train, then the people around the train are moving. That seems to be like all the people. ओके ओके, Yeah. फाइन। तो मतलब कि हम लोग बैठे हैं ट्रेन में और ट्रेन के बाहर जितने भी लोग हैं सब दौड़ रहे हैं, सब इधर उधर जा रहे हैं, तो लगता है कि शायद ट्रेन चल रहा है। ठीक है, Yes. और बोलिए, और कभी एक्सपीरियंस किया है? और कभी एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, जब हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और दूसरा ट्रेन भी आके बाजू में रुक जाता है,
फिर हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि हमारा ट्रेन जो है स्टेशन से स्टार्ट करे, लेकिन हमारा ट्रेन स्टार्ट नहीं करता, वो ट्रेन स्टार्ट करता है। तो जब उस ट्रेन को देखते हैं तो लगता है अरे मेरा ट्रेन स्टार्ट किया क्या? ये कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? Yes, sir. हाँ, कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? Yes, और खासकर जब अपोजिट से आ रहा है ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन देख के लग रहा है वाह हमारा ट्रेन तो खुल गया, लेकिन क्या हुआ है एक्चुअली उसका ट्रेन खुला है ना, उसका ट्रेन खुला है। फिर जब हम लोग ग्राउंड देखते हैं तब फिर हमें पता चलता है अरे हमारा ट्रेन तो स्टेशनरी है। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, तो sir. यस, तो जब आउटसाइड, तो पहले भी जो आपने बोला कि आउटसाइड के जब लोग जा रहे हैं तब फिर लगता है कि अरे शायद ट्रेन चल रहा है। इस एग्जांपल में भी जब दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, फिर जब वो ट्रेन निकलती है तब फिर हमें लगता है कि हमारा ट्रेन चल रहा है। ओके, so how we conclude whether our train is at rest or not? By seeing relative motion. Okay, Yes, जो कि sir. यहाँ पे ठीक है। Fine. So think and act. We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. तो कल एक क्वेश्चन आया था कि मोशन का हमारे लाइफ में क्या रेलेवेंस है, रेलेवेंस है कि नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं सर? केवल नंबर लाने के लिए? केवल न्यूटन ने कुछ कुछ लॉज ऑफ मोशन निकाल लिया, कुछ कुछ लॉज निकाल लिया, बस उसको पढ़ने के लिए? है ना, कुछ तो करना है ना सर, इसीलिए लगता है टीचर ने डाल दिया। हाँ, तो यहाँ पे उसका एक और आंसर है कि हमारे चारों तरफ देयर इज मोशन। एंड व्हाट इज द मोशन? यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज समटाइम्स मोशन। यहाँ पे 3 मोशन दिया गया है। कौन कौन सा 3 मोशन है बोलिए, देख के पढ़िए, बोलिए। 3 मोशन मैंने पढ़ा अभी, क्या क्या 3 मोशन है जिससे कि हमने खतरा है? बोलिए 3 मोशंस, व्हाट इज मेंशन्ड हियर? Sir, flooded river, a hurricane, एक or a मिनट, एक आपने tsunami. बोला, दूसरा दूसरा लोग बोले। सर सुनामी। ओके, और तीसरा क्या है? Hurricane. खुशी बोल रहे हरिकेन। हैं। ठीक है, हरिकेन। सो इसी मोशन है उसमें, लेकिन आपको क्या लगता है सुनामी से किसका फायदा होता है? सुनामी से क्या होता है, मतलब कि है ना, आप है ना, हमारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सुनामी आया और उसके बाद फिर हम लोग क्या सुनते हैं, सुनामी आया और एकाएक है ना बहुत सारे बिल्डिंग्स बन के खड़े हो गए। ऐसा सुना है हम लोगों ने? कभी सुना है? नो सर। हाँ, एकाएक पूरा बिल्डिंग नो बन सर। के खड़ा हो गया, फिर सब लोग वहां पे झगड़ा कर रहे हैं कौन सा बिल्डिंग मेरा है, कौन सा बिल्डिंग आपका है। सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी वहां पे पहुंच गए और बोल रहे हैं कि एटलीस्ट ठीक है बिल्डिंग छोड़ी एक फ्लैट दे दिया। ऐसा कभी सुना है आप? नहीं। No, sir. सुनामी से केवल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही Damage. होता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ मोशन ऑफ वाटर, बट ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मोशन देयर इज व्हाट, Destruction. कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, देयर इज Destruction. डिस्ट्रक्शन। so therefore we require to understand how to control the motion of such disasters। तो उसके लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना कि कैसे मोशन होता है, मोशन का क्या फैक्टर्स होता है, मोशंस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, मोशन को कैसे रोका जाता है। ओके, एंड बेस्ड अपॉन दैट ओनली देयर आर like what is Richter scale, or there are nowadays due to technological advancement there are many ways of predicting earthquake and tsunamis and all। कभी कभी काम नहीं करता, लेकिन we are kind of we want that अगर सपोज हम लोग प्रेडिक्ट कर लिए रहते एक दिन पहले, तो एक दिन पहले सब कुछ खाली कर दिया रहते, है ना। So we require to understand the motion, we require to study about motion so that we can control the motion। Okay, so this is its effect in our daily day-to-day life। Okay,
On the other hand, a controlled motion can be a service to human beings, such as the generation of hydroelectric power. Yeah. Okay, hydroelectric power क्या है? What is hydroelectric power? कोई बोलेगा? Like how we generate electricity through water. Yes. How we do it? So turbines वगैरह आपने पढ़ा है? Yeah. Yes. Turbines. There are falls, waterfalls are there. Then there is, one of the new technologies is tidal energy. जो शोर पे ओशन रहता है उसमें हमेशा वेव्स आता रहता है, टाइड्स आता रहता है, तो बहुत एनर्जी है उसमें. तो उस एनर्जी को यूज करके, और वो एक्चुअली क्या है, एनर्जी वेस्ट जा रहा है, उस एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, which can be a service to humankind. So therefore we require to study and understand the motion of tides. Okay, and when we understand it, that can be, when we control it, when we kind of capitalize it, we will be able to render so much service to the bank. Okay, so do you feel, so now tell me, do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? So do you feel there is necessity to study motion? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और एक दो और रीजन है हमारे एग्जाम में भी रहता है ना, एक सब भी रीजन है, वैलिड. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्टिविटी 8.1, 8.2 थिंक एंड एक्ट. ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है? हमारे पास आधा 20 सेकंड सर दे, बोलिए. और नहीं तो अगर क्लियर है तो सबको ही बोलिए यस सर, इट इज 100% क्लियर, तब फिर आगे बढ़े. Yes, sir. It is clear. 100%. Yes, sir. Yes, sir. 100% clear. ये एक वोट है, दूसरा वोट, Yes, sir. It is 100% clear. और तीसरा. Yes, it is 100% clear. ओके, अच्छा, क्लियर का दो मतलब होता है ना, पहला क्लियर है कि सब कुछ Sir, समझ में पहला आता वाला clear. है. ओके, अच्छा, ये बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि, है ना, देखो एक्चुअली ये हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह में ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड थ्योरी, इम्पोर्टेंट है. तो आई वाज जस्ट फीलिंग कि हम लोग एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है? जस्ट दिस वन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेते हैं. ओके, सो इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन. Birds fly, fish swim, blood flows through the veins and arteries. No, blood flowing. Actually, pacemaker जो कि हार्ट में लगाते हैं ना, वो आपका जो हार्ट बीट हम लोग का होता है ना. Now, in order to like design pacemaker, जैसे कि जो लोग बूढ़े हो गए, हार्ट अटैक आ गया किसी का, तो उसके बाद फिर उनका हार्ट के लिए, हार्ट में हार्ट को वाइब्रेशंस देने के लिए यू रिक्वायर पेसमेकर. अभी वो पेसमेकर मानिए कि ज्यादा प्रेशर दे दिया ब्लड पे, तो क्या करेगा? हमारा तो वेन्स छोटा सा ही है, ज्यादा प्रेशर दे दिया तो वेन ही फट जाएगा, और कम प्रेशर दिया तो कम ब्लड फ्लो होगा ब्रेन्स वगैरह में, लंग्स में, तो फिर वो ऑर्गन काम ही नहीं करेगा. तो देयर हैज टू बी एग्जैक्ट प्रेशर जिससे आपका वो ब्लड का मोशन हो. वी रिक्वायर टू नो कि किस प्रेशर से, किस वेलोसिटी से ब्लड फ्लो कर रहा है. So we require to study the motion, which is important for us. Okay, birds flying. Actually, birds flying का ही motion समझ करके Wright brothers ने aeroplane बनाया. Okay, so it is important. Fish swim. इसका हम लोगों ने स्टडी करके क्या बनाया, बोलिए? Boat ship. बोट शिप. एक और चीज है जो कि बोट और शिप तो एटलीस्ट सरफेस ऑफ वाटर पे रहता है, एक और चीज जो वाटर के अंदर है. Sir, submarine. Submarines. Okay, and submarines are one of the most important things in defense. Okay, submarines इतना बड़ा रहता है, उसमें आप, है ना, मिसाइल वगैरह सब रख सकते हैं. And how it is very important, because ships and all, it can be tracked, but to track a submarine is very difficult.
So we require to study the motion, then we can do it. Okay. So birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Now this is very common thing. When we are traveling in vehicles, we are traveling in car, when we are traveling in bike. Okay. Now that has to be monitored, है ना? Suppose आपने accelerator दिए, तो वो accelerator कभी-कभी जब एक्सीलेटर वगैरह खराब हो जाता है, और कभी-कभी जो नया बाइक जो चलाना सीखता है ना, कभी-कभी इतना एक्सीलेटर दे देता है वो बाइक उठ जाता है. तो सपोज जब किसी ने अगर बाइक को ही रॉन्ग डिजाइन कर दिया, एक्सीलेटर बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा एक्सीलेट हो जाएगा, देन देयर विल बी प्रॉब्लम. So when we are talking about accelerator, we are talking about acceleration. Acceleration means change of velocity. So Yes. change of velocity or motion. So we require, so when we are designing all these things, we require to study motion. Next, atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. अगर हम लोगों को एटम और मॉलिक्यूल का मोशन समझ में नहीं आए, then all the electronic instruments are gone. What? You're getting? जितना Yes, आपका sir. टीवी है, मोबाइल है, सब फेल हो जाएगा. But how? Because we are knowing that how electron is moving, how how the ray of electrons is moving, and all. That's why we can understand. That's why we can design gadgets. And that's why you can talk with your father even you get admission. Suppose tomorrow you are in IT Delhi or AIMS Delhi, or Abul Kalam Hospital Delhi. Okay, now how you are in touch with your parents? On phone. Now how the phone works? It works based upon the motion of electrons and ions in ionosphere and all. Motion is there. Atoms, molecules, planets and stars. बहुत बार हम लोग सुनते होंगे कि हमारे प्लैनेट को खतरा है ना, कोई एस्टेरॉइड आने वाला है, गिर जाएगा, फिर हमारे साइंटिस्ट ने उसको है ना like deflect कर दिया. So how we understand it, how we help the people to be protected through these all calamities. We have to understand the motion of objects. Okay, so right from microscopic world to macroscopic world, everything is everywhere there is motion, and all these motions are affecting our lives. Okay. Yes, sir. So we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. अच्छा, सब लोग मेरे साथ हैं? आपके सामने आपका बुक है, बुक या PDF, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कुछ भी है? हाँ बोलिए. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. बाकी लोग? Yes, sir. Sir, NCERT book ना? हाँ हाँ हाँ, उसी से मैं पढ़ रहा हूँ. आप देख रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके सामने है, दिख रहा है? No, sir. Yes. अरे निकाल लो ना, देख लो. Sir, page number. पेज नंबर 98. Yeah. ओके. और वो तीसरे खुशी. I have no book. You don't have a book? Okay. तो ओके, आज मैं क्या करूंगा, PDF बुक मैं इस ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर लेना. ओके. Yes. अरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा. Fine. So we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. ठीक है, ये तो सिंपल है, क्लियर है. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. तो अभी कभी क्या है, हम लोगों को मोशन दिखता है, कभी मोशन हम लोगों को नहीं दिखता. नहीं दिखता. एग्जांपल बोलिए. So like we are on the earth, but the motion of the earth is not visible to us. गुड एग्जांपल. और बोलो, सब लोग बोलो एक एग्जांपल. खुशी और ये संस्कार, आप बोलो एग्जांपल बोलो कि कुछ मोशन में है लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि मोशन में. सर लीव्स, उसका जो मूवमेंट होता, लीव्स. आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप अगला लाइन पढ़ चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट.
ठीक है, लीव्स का मोशन ना एयर के कारण होता है, ठीक है, वो भी हम लोगों को नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता। ओके, और बोलिए ये खुशी आप बोलो कुछ, जो मोशन हो रहा है हमारे सराउंडिंग में लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा, बोलिए बोलिए। The movement of wall. मूवमेंट ऑफ Wall. बॉल, कौन सा बॉल? Wall. Wall. वॉल, अच्छा हाँ, मतलब कि ठीक है, वो विद रेस्ट, हाँ कैसे इसका मोशन हो रहा है, वॉल का कैसे मोशन हो रहा है? कैसे है मोशन, वॉल मोशन में है, हाँ या नहीं? Yes, हाँ? sir. कैसे कैसे मोशन है? Frame of relative. हाँ ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने, ठीक है, अब हमको हिंदी में अच्छे से सिंपल सा वर्ड में समझाइए कैसे मोशन है, बोलिए। वॉल, जैसे कि ये वॉल है, कैसे मोशन में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, बोलिए बोलिए। मैक्सिमम देखिए क्या कर सकते हैं आप, गलती कर सकते हो, उससे आप थोड़ी कुछ कर सकते हो, तो टेंशन मत लीजिए गलती करने से, बोलिए बोलिए। मुझे याद है मेरे जो फिजिक्स टीचर, ठीक है, मेरे जो फिजिक्स टीचर, मैं उनको बहुत लाइक करता था, तो वो जो फिजिक्स टीचर थे मेरे, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो 12th में आएगा आप लोगों के, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, है ना। तो वो पढ़ा रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बोला सर फिर से थोड़ा एक बार बताओ। फिर दूसरा बार बोला सर फिर से, ठीक है? फिर भी मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर मैं तीसरा बोला सर फिर से, सर पूरा एकदम गुस्सा आ गए, देखिए क्या है तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, अच्छे से समझो ना, ध्यान लगाओ, ठीक है। उसके बाद फिर सर ने चौथा बार समझाया और उसमें फिर मुझे समझ में आया, फिर चौथा बार समझाने के बाद क्लास को बोला, पूरा क्लास को बोला कि दिस इज अ जेन्युइन पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टूडेंट, इस स्टूडेंट से मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि इसको ये परवाह नहीं है कि मैं क्या बोलूं, ये परवाह है कि मुझे समझ में आ रहा है। क्लास में ठीक है सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो क्लास का बात है, मुझे तो अपना लाइफ देखना है ना, मुझे तो आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जनरली वो सर किसी को ना उस हिसाब से क्लास के बीच में सब प्रेज नहीं करते, ठीक है। तो उस दिन सर ने हमारी क्लास में ये प्रेज किया कि मैं मतलब कि मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, मैं सर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी जो हम लोगों का क्लास चल रहा है, ठीक है, आपको फुल राइट है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है अगेन यू इंटरप्ट मी, है ना, आई विल बी हैप्पी टू अगेन मेक यू अंडरस्टैंड, ओके, इवन इफ आई एम नॉट हैप्पी अगेन यू शुड इंटरप्ट, यू आर गेटिंग ना। पर पॉइंट क्या है कि आई एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग समझ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज माई सक्सेस एंड दैट इज योर सक्सेस ऑल्सो ऑफ अटेंडिंग, ओके। ठीक है, चलिए बोलिए कि क्या पूछ रहे थे, क्या था? हाँ, वॉल, वॉल जो है कैसे मूवमेंट में है, बोलिए। Sir, Earth is in motion. हाँ, गुड, अर्थ इज इन मोशन, तो कहाँ पे आप बैठिएगा तो आपको दिखेगा कि वॉल मोशन में है? कहाँ से Sir, आपको दिखेगा? हाँ? I do not understand. What you don't understand? Question? Yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने बोला ना कि अर्थ मोशन में है, इसीलिए अर्थ के साथ साथ वॉल जा रहा है, करेक्ट? Sir. तो वॉल इज इन मोशन। Yes, sir. ये जो है हमारा किसके रेस्ट, मतलब कि कहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो अर्थ मूव कर रहा है, क्योंकि हम तो अर्थ पे ही बैठे हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है कि Yes. अर्थ मूव कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि अब अपने नीचे देखिए, पैर पे देखिए, दिख रहा है कि धरती मूव कर रहा है, दिख रहा है, हाँ या नहीं? No, बोलिए। sir.
हाँ, No, sir. No, sir. कहाँ से आप देखिए, कहाँ आप सपोज आपका आप अपने एक फ्रेंड का नाम बताइए, Riya. फ्रेंड का नाम बताइए। हाँ Riya. हाँ चलिए, तो कहाँ पे आप प्रिया को भेजिएगा जो कि प्रिया बोले कि अरे खुशी तुम तो मूव कर रही हो, कहाँ पे भेजिएगा, कहाँ से Space. देखेंगे? हाँ स्पेस में, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस मूव हो रहा है। ओके, तो ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What causes the phenomenon of sunrise, sunset and changing of seasons? बोलिए क्या है, क्या वो चीज है? Sir, the revolution of Earth. Revolution of Earth से क्या cause होता है? Yeah. क्या होता है cause? क्या, हाँ इससे Sir, क्या होता है? revolution. Sir, revolution of Earth से season change होता है. सीजन चेंज होता है। और सनराइज सनसेट? Yeah, rotation of Earth. ठीक है, okay. अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो नहीं आया हो तो भी टेंशन मत लीजिए, आगे में हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है ठीक है, चलो इसको भी एक बार थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं, है ना। ओके, बाद में so what causes the change of seasons? Okay, this is sun, Yes, sir. this is earth, है ना। Yes. ठीक है, तो जब अर्थ जो है पास में है तो क्या होगा, क्या लगेगा ज्यादा, बताइए। Sir, summer. हाँ गर्मी ज्यादा लगेगा, अर्थ पास में है, क्योंकि अर्थ Yes. का ऑर्बिट कैसा है, ऐसा है, मतलब कि गोल सीधा नहीं है, अर्थ का ऑर्बिट जो है एलिप्टिकल है, मतलब कि एक तरफ ज्यादा बड़ा है। ये ए अगर डिस्टेंस है, ये बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, है, Yes, sir. ठीक है। तो जब दूर है तो ये हो गया विंटर, और जब पास है तो ये हो गया समर, ठीक है Yes, sir. ठीक है। और जो है ये कितना दिन में रेवोल्यूशन होता है, कितना दिन में एक बार घूमता है, कितना कितना दिन लगता है एक Sir, बार, sir, approx 365 days. ठीक है, 365 1/4 days, Yeah. है ना। तो ये रेवोल्यूशन से क्या हो गया, चेंज ऑफ सीजन, सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और अपने ही ऑर्बिट पे अर्थ जो है गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो मानिए एक आदमी इधर है ना, मानिए कि है ना ये संस्कार, ठीक है छोड़िए, मानिए अमीर, ठीक है, हम इधर है, ओके। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा मतलब कि 12 घंटा के बाद ये घूम गया, अर्थ तो घूम रहा है, हम भी साथ साथ घूम रहे हैं, ऐसे हो गया, ये इधर से हम इधर आ गए, Yes. सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या था, इधर था नाइट, इधर था, इधर हो गया डे, क्योंकि सन दिख रहा है हमको ना, Yes, sir. ठीक है। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ causes डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes summer, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। Yes. Is it due to the motion of the earth? Yes. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? हाँ चलिए, क्यों हम लोग को मोशन ऑफ द अर्थ नहीं दिखता है, बोलिए। Yes, sir. Because we are on the earth. हाँ, क्योंकि हम लोग खुद अर्थ पे बैठे हैं, इसलिए नहीं दिखता। आप है ना, अगर आप अपना फ्रेंड है, आप फ्रेंड के पीछे आप साइकिल पे बैठे हैं, तो आपको फ्रेंड का कुछ मोशन नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि है ना जो बाजू के जो लोग हैं वो लोग पीछे जा रहे हैं, जो अर्थ है वो पीछे जा रहा है, जो खेत खलियान है वो पीछे जा रहा है, जो हमारा स्कूल है वो भी पीछे चला गया, है ना। तो क्योंकि साथ में ही मोशन कर रहे हैं इसलिए नहीं समझ, ठीक है। जैसे कि मैं और मेरा शर्ट,
मुझे शर्ट का मोशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, साथ में ही जा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी ऑलरेडी टाइम हो गया, that's fine. We will cover all the activities. Okay, is it okay? I am going little slow, पर मतलब कि ज्यादा चैप्टर्स तो है नहीं ना आपका, तो फिर अच्छे से कवर करते हैं, एक एक चीज समझ के कवर करते हैं। Is it okay or not? Absolutely okay, sir. Okay. और वो दो लोग बोलो। Yes, sir. It's okay. और वो Yes, sir. It is okay. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल मीट टुमारो। टुमारो द टाइमिंग्स मे बी चेंजिंग और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन काइंड ऑफ यू मे रिपोर्ट टू द वो हमारे ग्रुप में एक है ना मोबाइल नंबर, उस पे आप रिपोर्ट। ओके, थैंक यू वेरी Yes, मच। sir. Okay, sir. Thank you. अरे एक मिनट कुछ, अरे एक मिनट, कुछ तो होमवर्क दिया ही नहीं, 2-3 दिन से होमवर्क नहीं दिया। तो आप लोग है ना, तीनों है ना? चलिए चलिए ठीक है, चलेगा। आज 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 आप लोगों का दिन है, कोई होमवर्क